Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today we are going to do the software design part 2 lecture, in which we will discuss in detail about the architectural design. In the previous lecture of software design part 1, we have discussed some common things regarding the software design. Now, for each software development process, in the design part, we need to design the software architecture, maybe from different perspective point of view, from physical point of view, from development point of view, from just view point of view, yeah, from just block diagram. So at one stage we have to create the software architecture in order to understand the global view that what kind of a software that we are going to develop. Okay, so today is more focused with architectural design. So whenever you want to develop software, every teacher or even the software houses where you work, you need to develop the software architecture. Okay, this is the software that we are going to develop to show the user. The today's topics are covered as architectural design decisions, architectural views, architectural patterns, and application architectures. Architectural design is concerned with understanding how a software system should be organized and designing the overall structure of that system. कि किस तरह से जो है वो आपका जो है हाउ हार्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उसकी होगी एज ए ग्लोबल व्यू के कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे. ठीक है. Architectural design is the critical link between design and requirements engineering, as it identifies the main structural components in a system and the relationship between them. When we are done with the requirements engineering process, तो उसके बाद जो है वो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि whatever the requirements that we have gathered, we identify the main structural components. कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इस सिस्टम के होंगे जो कि इस आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे. एंड ऑफ कोर्स विद इन दोज कंपोनेंट्स देयर विल बी फर्दर स्टेप्स, देयर विल बी फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट्स एज वेल, बट एज अ होल वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द नादरा then database, we can discuss about the registration of NIC, the registration of birth certificate or marriage certificate. So the marriage certificate, processing of marriage certificate, processing of NIC, processing of birth certificate will be the, all of these three things will be the major components of the another database. The output of the architectural design process is an architectural model that describes how the system is organized as a set of communicating components. क्या आउटपुट क्या होगा कि सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स को, सारे के सारे कंपोनेंट आपस में किस तरह से जो वो कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. For example, a simple architecture of a packing robot control system is given. There are several different patterns से किस तरह से आर्किटेक्चर होना चाहिए. We'll discuss about those in this lecture. लेकिन सिंपली जो है आपके पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है. जिस एग्जाम्पल के एक विजन कंट्रोल का एक एग्जाम्पल के विजन सिस्टम है, उसके ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में पता चले कौन सा जो है उसकी रोबोट की आर्म कंट्रोलर होगा, उसका ग्रिप कंट्रोलर होगा. एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो पैकेजिंग सिलेक्शन सिस्टम होगा और पैकेजिंग सिस्टम के होगा, और विजन के अंदर आर्म कंट्रोलर होगा और ग्रिपर कंट्रोलर होगा. एंड देन योर कन्वेयर कंट्रोलर. दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स of this packing robot control system. अब इसमें ये जो अलग से बाउंड्री बनाएगी means these components work together, combine together. Communication between these components is more important, and whatever the other components who are going to communicate with them, they are going to communicate with both of them together. Same way as packaging selection system and packaging system. There is no hard and fast rule for this notation, but as this highlight area clearly depicts that these both are components are going to work together, and they'll communicate together with all of these rest of the components. Architectural abstraction. Architecture in this small is concerned with the architecture of individual programs. At this level, we are concerned with the way that an individual program is decomposed into components.
आर्किटेक्चर स्मॉल इज कंसर्न विद द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, बिकॉज कंपोनेंट्स वो भी एक प्रोग्राम ही होगा जो इम्प्लीमेंट होगा. एट दिस लेवल वी आर कंसर्न द वे दैट इंडिविजुअल प्रोग्राम इज कंपोज इनटू कंपोनेंट्स. आर्किटेक्चर इन द लार्ज इज कंसर्न विद आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम दैट इंक्लूड अदर सिस्टम्स. के स्मॉलर लेवल में कहेंगे वो सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होगा, बट द लार्जर स्केल हम कहेंगे वो आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम होगा दैट इंक्लूड अदर सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स अवेलेबल होंगे, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम कंपोनेंट्स. These enterprise systems are distributed over different computers, maybe in a distributed computing environment, which may be owned and managed by different companies. तो छोटे से छोटा जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे उसके अंदर भी आर्किटेक्चर बनाएंगे, वो बड़े से बड़ा जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर भी जो आर्किटेक्चर बनेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम. लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा, नॉट ऑन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट. वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो कि हमें एक व्यू देगा जिस तरह यहाँ पे फॉर द एंटरप्राइज सिस्टम के लिए. एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर. एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक्सप्लिसिटली हम उस चीज़ को डिज़ाइन करें. स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिटली अगेन नॉट ओनली कि हम उसको जो है वो यूज़ केसेस में डिफाइन करें या हम जो है उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन करें या रिक्वायरमेंट्स रखें और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, बट वी एक्सप्लिसिटली नीड टू डिज़ाइन दैट आर्किटेक्चर. Stakeholder communication architecture may be used as a focus of discussion by system stakeholders. Stakeholders के दरमियान डिस्कस हो सकता है कि भाई ये आर्किटेक्चर है, ये कंपोनेंट्स होंगे, this is our vision of the system after gathering the requirements. System analysis means that analysis of whether the system can meet its non-functional requirements is possible. कि वो non-functional requirements से जो है वो meet करता है या नहीं करता. Large scale reuse. The architecture may be reusable across a range of systems. Product line architectures may be developed. Means that architecture components that can be reusable in a range of systems or not, because there's a possibility that some architectures are going to be developed that are similar domain. As I've given you an example of a banking system. So when you go and make an assignment of a banking system, you might find that there are already developed major banking systems available over the internet, so you can follow them. So they are reusable components across them. So you can reuse those components that are already available. Or product line architectures may be developed. Product line architectures means we might have discussed about the software as a product. क्योंकि पहले जो थी वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो था वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में डेवलप होता था और कंपनी उसको जो है वो सेल आउट करती थी डायरेक्टली, बट नाउ सॉफ्टवेयर इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट. दैट इज आल्सो सिंस मोर देन 2 decades. Because when you go in the supermarkets, not in the Pakistan but in European supermarkets, you may find that apart from your groceries things in the supermarket, there is an electronic section in the supermarket as well, which contains different laptops, mobile phones and software products as well. तो वहाँ पे आप सिमेंटिक नॉर्टन एंटीवायरस की CD या DVD पड़ी होगी, वहाँ पे विंडोज़ की DVD पड़ी होगी, ऑफिस की DVD पड़ी हुई होगी. तो वो जो है आप वहाँ से उठा के अपनी कार्ट के अंदर यू कैन प्लेस दैट. व्हेन यू गो टू द पॉइंट ऑफ सेल्स लोकेशन, यू कैन बाय दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन विथ योर ग्रोसरी थिंग्स लाइक योर ब्रेड एंड मिल्क एज वेल. ठीक है, तो नाउ सॉफ्टवेयर इज आल्सो बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट. तो जब वहाँ वो प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो डिफरेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिस तरह आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ प्रोडक्ट, Microsoft Office is a product, Microsoft Visual Studio is a product. So these are the different product lines of the Microsoft. जैसा टोयोटा की मुख्तलिफ गाड़ियाँ, सुजुकी की हैं, आपकी वेगनार है, आपकी जो है वो अल्ट्रो है, आपकी जो है वो कदाशी है, your different range of the cars. So these are the product lines of that company. So product line architecture means every product will be having its own architecture, but something will be common. आर्किटेक्चर में भी डेवलप, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी चीज़ें कुछ कॉमन होंगी, कंपोनेंट्स जो कि विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो कि विंडोज़ के अंदर, तभी ये एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम कर सकती हैं. उनका जो आपने देखा होगा विंडोज़ डायलॉग बॉक्स जब खुलता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, विजुअल स्टूडियो का, विंडोज़ का, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशंस, सिंपल इनफॉर्मल ब्लॉक डायग्राम्स शोइंग एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स
आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। सिंपल आपका इनफॉर्म ब्लॉक डायग्राम्स होगा जो कि एंटिटीज के तौर पे शो कर रहा होगा, जैसे आपने ईआरडी की एंटिटीज देखी है तो वो भी इस तरह की एंटिटीज के तौर पे शो कर रहा होगा, एंड रिलेशनशिप्स जो वो इस्तेमाल की जाती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिजाइन करता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट दीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दे लैक सिमेंटिक्स, do not show the types of relationship between entities nor the visible properties of entities in the architecture। मगर ये चीज क्रिटिसाइज की जा रही है, दे लाइक सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स कहा जाता है द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डेटा अबाउट द डेटा, यू कैन से दैट मेटा डेटा, बट नॉट एग्जैक्टली मेटा डेटा। लेकिन सिमेंटिक्स मीन अंडरस्टैंडिंग। देयर आर टू लेक्सिकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, देयर आर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स का मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड मैचिंग, सिमेंटिक का मतलब ये कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका मीनिंग जो है दो चीज़ों का आपस में मैच होना। जिस तरह से जब स्काइप वगैरह अभी आपने देखा होगा वॉइस रिकग्निशन है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, तो स्काइप के अंदर क्या होता है कि जब एक कमर्शियल आपने ज़रूर देखी होगी कि चाइनीज़ बंदा एक अमेरिकन से बात कर रहा है, चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ में बात कर रहा है, अमेरिकन अपनी अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है। Whenever person speaks in English, that is translated into the Chinese language, and when a person speaks in Chinese language, that is translated in English language। तो अगर वर्ड टू वर्ड अगर उसकी ट्रांसलेशन होगी तो ऑफकोर्स वो पूरी उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, जिसे गूगल ट्रांसलेटर करता है अक्सर। तो वो उसकी सिमेंटिक्स के ऊपर काम करते हैं कि जो चीज़ चाइनीज़ बंदे ने कही है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो, उसकी मीनिंग जो है वो चेंज ना हो जो कि चाइनीज़ बंदे ने बात की है, जिस एंड वाइस वर्सा फ्रॉम द इंग्लिश पर्सन टू द चाइनीज पर्सन। तो उसको कहा जाता है सिमेंटिक्स, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम इसको रिटेन रख सकें। सो डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर मॉडल सिमेंटिक्स डिपेंडिंग हाउ द मॉडल विल बी यूज्ड। बॉक्स एंड लाइन डायग्राम वेरी एब्स्ट्रैक्ट, दे डू नॉट शो द नेचर ऑफ कंपोनेंट रिलेशनशिप्स नॉर द एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबसिस्टम्स, however useful for communication with stakeholders and for project planning। कह रहा है कि बॉक्स एंड लाइन डायग्राम जो अभी मैंने पहले जो है ये हमने देखा, दिस इज बॉक्स एंड लाइन डायग्राम्स, बट दे डू नॉट शो नेचर ऑफ कंपोनेंट रिलेशन, आपस में रिलेशनशिप किस तरह से है, कौन सा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कहाँ से इनपुट जा रहा है, कहाँ से आउटपुट जा रहा है, क्या इनपुट जा रहा है, कौन से सब सिस्टम से, वो चीज़ विजिबल नहीं है। हाउएवर यूज फॉर कम्युनिकेशन विद स्टेकहोल्डर्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, एट द इनिशियल स्टार्ट ऑफ स्टेकहोल्डर्स के साथ यू कैन कम्युनिकेट दैट आर्किटेक्चर फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये कंपोनेंट्स जो हैं वो होंगी। यूज ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल्स एज अ वे ऑफ फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अबाउट द सिस्टम डिजाइन, a high level architectural view of the system is useful or for communication with the system stakeholders and project planning because it is not cluttered with the detail. Stakeholders can relate to it and can understand an abstract view of the system. They can then discuss the system as a whole without being confused by detail. तो जो ऊपर के लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो इस तरह के हाई लेवल आर्किटेक्चर को ही पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिटेल लेवल जो आर्किटेक्चर होगा दैट इज नॉट फॉर द स्टेक होल्डर्स बट मोर ऑफ अ काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम और द डिजाइन टीम। But as a way of documenting an architecture that has been designed, the aim here to produce a complete system model that shows the different components in a system, their interfaces and their connections. What will be the end of the architecture design? या बात का लुब्बे लुबाब ये कि a complete system model that shows different components, उसके अंदर different components होने चाहिए, their interfaces, how they interact with each other, and their connections, how they are connected with each other. So this is the main goal of the designing and architecture. Architectural design decisions. Architectural design is a creative process, so the process differs depending on the type of system being developed. किस तरह का सिस्टम बनाना है उस हिसाब से जो है प्रोसेस डिफर हो सकता है। आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपका डेटा एनालिसिस आपका सिस्टम है, आपका कंपाइलर की तरह सिस्टम है, सो यू हैव डिफरेंट पैटर्न्स एज वेल डिजाइनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. However, number of common decisions open span all design processes, and these decisions affect the non-functional characteristics of the system. A number of common decisions जो कि इस्तेमाल होंगे आपके जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर डिजाइन करते वक्त, और दिस डिसीजन अफेक्ट द नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम. इसको जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं. किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं कि हाउ द सिस्टम
बी डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस हार्डवेयर कोर्स प्रोसेसेस, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, व्हाट आर्किटेक्चर पैटर्न्स आर स्टाइल्स माइट बी यूज्ड, what strategy will be used to control the operation of the components in the system, how should the architecture of the system be documented, what architectural organization is the best for delivering the non-functional requirements of the system, how will the structural components in the system be decomposed into subcomponents, किस तरह decomposing, what will the fundamental approach used in structure of the system, is there a generic application architecture that can act as a template for a system that is being designed. तो आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसको बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि मेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो होती ही जो है वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि दे इंक्लूड परफॉर्मेंस इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज, आपके जो कल्चरल पॉलिटिकल इश्यूज या लीगल इश्यूज, वो मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी होती नहीं है. सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिकॉज दीज आर नॉट प्रॉपर्ली डिपिक्टेड इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर रीयूज. Systems in the same domain often have a similar architecture that reflect domain concepts. Application product lines are built around the core architecture with variants that satisfy particular customer requirement. The same domain के अंदर जो है similar architecture अक्सर आपको दिखाई देते हैं that reflect the domain concepts, and application product lines are built around the core architecture with variants that satisfy particular customer requirements. कि आपकी जो product lines are built around the core architecture. Core architecture means आपका विंडोज के अंदर जिस तरह डॉटनेट फ्रेमवर्क है, तो ऑफिस भी आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करता है, विजुअल स्टूडियो भी आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करता है, विंडोज के अंदर भी डॉटनेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है. तो डॉटनेट फ्रेमवर्क कंटेन्स योर कोर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो वो चीज जो होगी वो हर प्रोडक्ट लाइन का जो होगा वो हिस्सा होगा. द आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम में बी डिजाइन अराउंड वन और मोर आर्किटेक्चर पैटर्न्स और स्टाइल्स. These captures the essence of an architecture and can be instantiated in different ways. कि आर्किटेक्चर जो है सिस्टम का वो डिफरेंट आर्किटेक्चर पैटर्न्स या स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए डिजाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डोमेन के हम कौन से डोमेन पे काम कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो है दिस कैप्चर द एसेंस ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड कैन बी इंस्टेंशिएटेड इन डिफरेंट वेज. किसी न किसी आर्किटेक्चर के पैटर्न को फॉलो करता है और उसी को जो है वो इंस्टेंस को इनिशिएट करता है. ठीक है. Architectural views. What views or perspectives are useful when designing and documenting a system's architecture? What notation should be used for describing architectural models? Each architectural model only shows on one view or perspective of the system. यानी कि कौन से views or perspectives हम use कर सकते हैं while designing or documenting a system architecture? There may be several views. कौन सी notations हम इस्तेमाल करेंगे for system architecture? Entity बनाए तो उसको गोल बनाए, सर्कल बनाए, उसको रेक्टेंगल बनाए, या उसको जो है वो रेक्टेंगल डिजाइन करके उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के हवाले से और उसको डिकम्पोज करके दो हिस्सों में कौन सी नोटेशन यूज करें इवेंचुअली. ईच आर्किटेक्चर मॉडल ओनली शोज वन व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टम. हर आर्किटेक्चर मॉडल एक ही पर्सपेक्टिव शो करेगा. किस इट माइट शो हाउ सिस्टम इज डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल्स, के मॉड्यूल्स के अंदर डिकम्पोज किस तरह से किया है, हाउ द रन टाइम प्रोसेसेस इंटरेक्ट और डिफरेंट वेज इन व्हिच सिस्टम कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेटवर्क, या कैसे जो है वो कंपोनेंट्स आपस में जो रन टाइम पे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे. फॉर बोथ डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन यू यूजुअली नीड टू प्रेजेंट मल्टीपल व्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. कि आपने जो है वो डिजाइन के हवाले से एंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से यू माइट नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर व्यूज ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. फॉर एग्जांपल आपका लॉजिकल व्यू किस तरह से होगा सॉफ्टवेयर का, व्हाट विल बी योर फिजिकल व्यू, हाउ विल बी योर प्रोसेस व्यू, हाउ विल बी योर डेवलपमेंट व्यू. तो इस सेम सिस्टम के लिए डिफरेंट व्यूज जो है पॉसिबल हो सकते हैं. अ लॉजिकल व्यू व्हिच शोज द की एब्स्ट्रैक्शंस इन द सिस्टम एज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लासेस, कि जो है वो की एब्स्ट्रैक्शंस जो होंगे, की मॉड्यूल्स जो होंगे ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट क्लासेस के तौर पर शो करेगा. अ प्रोसेस व्यू व्हिच शोज हाउ एट रन टाइम द सिस्टम इज कंपोज ऑफ इंटरैक्टिंग प्रोसेसेस, के रन टाइम पे प्रोसेसेस कौन से होंगे जो आपस में इंटरैक्ट करेंगे. डेवलपमेंट व्यू में व्हिच शोज हाउ द सॉफ्टवेयर इज डिकम्पोज फॉर डेवलपमेंट, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे. A physical view which shows system hardware and how software components are distributed across the processes in the system, कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है किस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो ये इस चीज़ को कहा जाता है 4+1 मॉडल व्यू. Representing architectural views, some people argue that a unified modeling language is an appropriate
नोटेशन फॉर डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कि जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द यूएमएल, जो कि आपके क्लास डायग्राम होते हैं, आपके जो है वो यूज केस डायग्राम्स होते हैं, आपके स्टेट डायग्राम्स होते हैं, आपके एक्टिविटी डायग्राम्स होते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर आई डिसएग्री विद दिस एज आई डू नॉट थिंक ऑफ द यूएमएल इंक्लूड्स abstractions appropriate for high level system descriptions. Architectural description languages have been developed but are not widely used. यूएमएल कहता है कि वो जो है अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्शंस जो है फॉर हाई लेवल डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड नहीं करता. लेकिन मैं समझता हूँ यूएमएल जो है वो जिस तरह क्लास डायग्राम है वो दैट इज सफिशिएंट इनफ, जो कि स्टार्ट ऑफ द सिस्टम के लिए आपका जो है ज़रूरी है. लेकिन ऑफ कोर्स इट डजंट कंटेन द सिमेंटिक्स. एडीएस जो आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस जो है वो डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम आर्किटेक्चर उनके थ्रू डिज़ाइन कर सकें. लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, बिकॉज इस ऑथर ने जो है काफ़ी जो है वो रिसर्च की हुई है आर्किटेक्चर के हवाले से, तो ही सेड दैट दीज आर नॉट वाइडली यूज. क्योंकि वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, हम खुद ही उसको डिज़ाइन कर लेते हैं. आर्किटेक्चरल पैटर्न्स. सो देयर आर डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स. आपके ब्लैक बोर्ड सिस्टम है, ब्रोकर्स पैटर्न है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इम्प्लिसिट इन्वोकेशन, लेयर्स, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज. देयर आर सेवरल आर्किटेक्चर पैटर्न्स. आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे. फ्रॉम विच फ्यू ऑफ द पॉपुलर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जो है हम जाके अभी जो है इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो कि मोस्टली इस्तेमाल होते हैं. दीज पैटर्न्स उनको कहते क्या हैं? पैटर्न्स आर मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग शेयरिंग एंड रीयूजिंग नॉलेज. ओके, रिप्रेजेंटिंग शेयरिंग और यूजिंग नॉलेज के जो हमने जो है जो बने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किए किसी न किसी पैटर्न के थ्रू, तो हम उसको शेयर कर सकें और यूज़ कर सकें उस नॉलेज को फॉर द फर्दर आर्किटेक्चर डिज़ाइन. An architectural pattern is a stylized description of good design practice which has been tried and tested in different environments. कि आपके आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है वो एक उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है. ऐसा ऐसा वो एक स्टाइल बन चुका है जो कि ट्राई हो चुका है और टेस्ट हो चुका है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में. पैटर्न शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन दे आर एंड व्हेन दे आर नॉट यूजफुल, कि वो कब इस्तेमाल हो सकते हैं, यूजफुल हैं कभी यूजफुल नहीं है, इसलिए तो डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन किए गए हैं. पैटर्न्स में भी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलर एंड ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस, कि आपके जो टेबुलर फॉर्मेट में या ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के तौर पे जो है वो